Hello guys, Namaskar. This is Aditya Prajapati from a very little village of Uttar Pradesh, and I have learned English by myself, and I already have uploaded 3 videos, but there are no views on those videos. Guys, this video is going to be about what are the problems that I used to face when I started learning English when I was beginner. I was facing lots of problems, so many problems in my starting phase of learning English. If you are facing too, then this video is very helpful for you. Please watch till the end, and if you like this video, please like and subscribe to my channel. I will be telling you everything, whatever the tips and techniques I used to use when I started learning English, because there are so many guys who are facing problems. They come from a very humble background, they come from Hindi medium background, or they come from village background, and they want to learn English, but they have so many restrictions and hesitation of speaking this language. Guys, believe me, if you have that kind of dedication in your life, in any kind of career achievement, in any kind of goal, you will definitely achieve if you have that dedication to achieve. Guys, believe me, I was not able to speak enough when I started learning English. I have been improving this language since since 1 year. Guys, I have given so much time for this. I never stopped learning this language, and this is really enjoyable, and this is very easy language in the world. If you are talking about, if you want to learn in any other language like Malayalam, Marathi, Tamil, Telugu, do you remember any single word of this language? No. These languages are very tough to learn because we don't know about anything in these languages, but English is the only language we know, because we were taught something in this language in our preliminary education or in other education, because this is a common language in our country. So, but why is this language very important? This language has been very important because it is an international language, and it is spoken by most of the population of the world, and it has been very important. I will tell you in another video why this language has been very important in the world. And guys, this video is going to be about what are the problems I faced when I started learning this language, because I have been through this process, guys. So because of that experience, I know and I can tell you in a very well manner. So guys, I'm going to start what are the problems that I used to face when I was beginner, when I was learning. So मैंने क्यों start किया guys? क्योंकि मुझे पता था that this language is going to be very helpful for me, especially. आपके लिए हेल्पफुल हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये मुझे पता था. यदि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको लर्न करना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट है सबके लिए. दिस लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू अचीव समथिंग इन हिज लाइफ. तो मतलब ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मुझे पता चल गया था कि मुझे तो ये इसे सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आई विल नॉट बी एबल टू अचीव माई एम. तो मैंने स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली सम सेंटेंसेस में लर्न किया करता था, जैसे 10 और 15 सेंटेंसेस को लिया, नोट किया और उसको मैंने रट लिया. I started mugging up those sentences every day, and I used to speak with my friends. मतलब मैं उन sentences को किसी भी तरीके से यूज़ करने की कोशिश किया करता था अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर पे, अपनी मम्मी से, मतलब कोई भी हो. But they don't understand. It doesn't matter that they are not understanding our meaning of saying. But we just have to speak because we want to use those sentences just for the मतलब एक माइंड में सेट होने के लिए ये करना पड़ता है. वो अंडरस्टैंड नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड गाइज,
there were so many I mean guys who used to make fun of me, but बहुत सारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया एंड वो बहुत ही अच्छे थे. वो बोला करते थे कि स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी. और कुछ थे जो मजाक उड़ाते थे. तो डेफिनेटली देयर आर आई मीन देयर इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव इन एवरीवेयर. तो आप यदि पॉजिटिव लेंगे किसी चीज़ को तो आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं. और गाइज, the only thing that you have to give up, that is same. if you are not giving up same, यदि आप शर्म महसूस करते हैं बोलने में तो यार ये छोड़ना पड़ेगा आपको. क्योंकि यदि आपने एक चीज़ छोड़ दी, शर्म करना छोड़ दिया लोगों के सामने, तो आप किसी भी करियर में किसी भी चीज़ में फोड़ दोगे. सच बोल रहा हूँ गाइज. एक्चुअली केवल शर्म है जो हमको रोक के रखती है कि इनके सामने यदि बोला तो ये क्या कहेंगे. क्योंकि लोगों का काम है कहना और वो तो कहेंगे ही. यदि आप इस थॉट को सोचते रहेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे लर्न करना और स्पीक करना, तो गाइज आई विल से डोंट लर्न दिस लैंग्वेज. आपको बोलना ही पड़ेगा. और मैं आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो. इफ़ यू डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट टू स्पीक in front of anyone, there are I mean there is no one with whom with whom you can speak. If you don't have, so you just have a mirror. You just have a mirror for speaking. You can speak in front of the mirror. Whatever the sentences, whatever you have done in your day, you just have to speak in front of the mirror. एंड पीपल यदि आप बोलेंगे उनके सामने तो आपका हेजिटेशन वो ख़त्म हो जाएगा गाइज. आप लोगों के सामने बोलिए तो ट्राई करिए, कुछ फिक्स सेंटेंसेस को लर्न करिए डेली और उनको बोलना स्टार्ट करिए. आपको किसी भी तरीके से उनको बोलना ही बोलना है अपने दिन में. डेली स्पीकिंग में आपको उन सेंटेंसेस को यूज़ करना है स्टार्टिंग में. आई एम टॉकिंग अबाउट बिगनर्स. जो बिगनर हैं, जो अभी कुछ नहीं जानते या सिंगल वर्ड मतलब जानते ही नहीं है कुछ और वो लर्न करना चाहते हैं इस लैंग्वेज को, तो वो ये कर सकते हैं. सबसे पहले सेंटेंसेस को लर्न करना है और आपको किसी भी तरीके से बोलना है. आपको एक्चुअली एक और चीज़ करनी है, आपको सराउंड करना है अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में. आपके अपने रूम को इस तरीके से रखना है कि आप एक इंग्लिश लर्नर हैं. एज अ इंग्लिश लर्नर यू जस्ट हैव टू डेकोरेट योर रूम. और आपको जो आपके जो फ़ोन पे दिखना चाहिए ना, वो इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट ही दिखना चाहिए. जैसे कि आप इंग्लिश रिलेटेड मूवी देख सकते हैं, इंग्लिश स्पीचेस सुन सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. एंड दिस इज़ वेरी इन्जॉयबल गाइज़. तो गाइज़, यदि आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और आप शर्म नहीं करेंगे किसी भी बंदे के सामने बोलने से, वो लोग यदि आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, इफ़ दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, बट you it should not be matter for you because you just have a dream to achieve. आपके माइंड में एक गोल है, वो आपको अचीव करना है. तो आपके सामने यदि कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ रही, कोई भी किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ रही, किसी भी तरह का सर्कमस्टांसेस है, तो आपको उसे फेस करना पड़ेगा. और यदि आप फेस कर लेते हैं तो आप निकल जाओगे आगे. गाइज, बिलीव मी, and it is not a rocket science guys, it is very easy language. It is just a language you can learn. गाइज, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा ये फ़नी हो सकता है गाइज. वन डे आई मीन मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम आए थे हमारे गांव पे. मुझे उस समय बोलना नहीं आता था ज़्यादा. मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जाके बोलूँ. तो आई spoke in front of DM. You can imagine what will be that situation. There were so many people of my village. मतलब इतनी सारी भीड़ थी और वहाँ पर ऑफिसर खड़े थे और मैं जाके बोलने लगा ऐसे इंग्लिश में, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक गुड. आफ्टर दैट आई वॉज फीलिंग सेम, बट आफ्टर दैट मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि इफ़ आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द डीएम, सो आई कैन स्पीक इवन इन फ्रंट ऑफ एनी वन. दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. तो ये इंसिडेंस था. यदि आप इस किसी भी तरीके से सेम को त्याग देंगे और किसी भी बंदे के सामने बोलना स्टार्ट कर देंगे, आई नो कि बहुत सारे लोग होंगे मजाक उड़ा सकते हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे गाइज. तो
पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यदि आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा गाइज, और आप लर्न कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लैंग्वेज हो चुकी है आज के दिन में, और इट इज़ गोइंग टू हेल्प ईदर वे गाइज, सच बोल रहा हूँ। और आप लर्न कर सकते हैं, आप 10th क्लास में और उससे भी पीछे हैं, या और आप बीए या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो भी आप स्पीकिंग कर सकते हैं और इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और यदि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, इफ़ आई एम अ विलेजर एंड आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड everything in English, so you can too guys. It is possible, it is possible, and you are possible guys. So in this video I wanted to talk about only those things that I used to face when I started learning this language, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मैं फेस करता था, वो आप लोग भी फेस कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, दोहराए वाली बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकती गाइज़। और तो गाइज़, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और जो कैसे मैंने लैंग्वेज को लर्न किया, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टिप्स हैं जो मैंने अपनाई, और मैं आज काफ़ी अच्छे से बोल लेता हूँ और अभी भी लर्न कर रहा हूँ। तो ये सारी टेक्निक्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा related to this language. Okay, so guys, have a good day. Bye bye, we will meet in another video.